Everyone, my name is Vikas Bhardwaj. I teach at RKSTPG College, Kaithal, and in this video, I have tried to explain, interpret the guidelines issued by Kurukshetra University, Kurukshetra about the undergraduate, postgraduate, and B.Ed regular examinations, which are commencing from the 13th of July 2021. These guidelines were issued yesterday, that is on the 6th of July 2021, and certain changes have been introduced in the exam pattern by the university, so the students need to be familiar with those changes. So that's why I have made this video. I will discuss each and everything point by point. So let us start discussing the guidelines. So this is the notification in the PDF format. The Vice Chancellor, on the recommendations of the Standing Committee, has approved the following guidelines for smooth conduct of the theory examinations of UG/PG semester B.Ed regular commencing with effect from the 30th of July 2021 onwards. तो ये जो 13 जुलाई से होने वाली परीक्षाएं हैं UG और PG और B.Ed रेगुलर, ये वाइस चांसलर ने एक स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस पर अप्रूव की हैं, और इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है द थियरी एग्जामिनेशन ऑफ UG/PG सेमेस्टर एंड B.Ed रेगुलर commencing with effect from 13 July 2021 onwards will be conducted in blended mode. तो ये ब्लेंडेड मोड यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आयोजित की जाएंगी। ये बात इसमें महत्वपूर्ण है। नंबर 2, choice of mode, that is offline or online, will be taken from the students by the chairperson, director, principal of departments, institutes, college concerned up to 10th of July 2021. तो आपके महाविद्यालय के प्रिंसिपल या आपके डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन या आपके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आपसे किसी गूगल फॉर्म या किसी अन्य माध्यम से आपकी चॉइस लेंगे कि आप ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा देना चाहते हैं या ऑफलाइन माध्यम से। पॉइंट नंबर 3, proctoring through Google Meet is mandatory and the students will ensure that they have the proper internet connectivity for the whole duration of the examination. In case any student doesn't have laptop, smart mobile phone, desktop with camera, or not having internet connectivity or having poor internet connectivity, she is required to request the chairperson, director, principals of the concerned department, institute, college well in time to appear in offline mode. तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो प्रॉक्टरिंग यानी आपका जो निरीक्षण होगा, आपके ऊपर जो सुपरवाइजरी ड्यूटी होगी गूगल मीट के माध्यम से, वो मैंडेटरी है, वो परम आवश्यक है। बिना गूगल मीट ज्वाइन किए आप ऑनलाइन माध्यम चूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डेस्कटॉप या मोबाइल कैमरा, स्मार्टफोन या कोई अन्य इसी प्रकार का गैजेट आपके पास नहीं है, तो आप ऑनलाइन माध्यम ना चुनें और ऑफलाइन की चॉइस आप अपने प्रिंसिपल या डायरेक्टर को या चेयरपर्सन को दे दें। The concerned chairperson, director, principal of the department will make necessary arrangements of physical examination and will provide printed copy of the question paper and university answer book to the candidate. तो अगर आप ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा देना चुनते हैं तो आपको फिजिकल आंसर बुक और प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। आप अपने महाविद्यालय या अपने डिपार्टमेंट में परीक्षा में उपस्थित होंगे, और इसमें यह भी बताया गया है कि कोविड-19 से संबंधित जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी गाइडलाइंस हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो आपको फॉलो करनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा देते हैं तो disappearance from the Google Meet during examination proctoring will be treated as use of unfair means by the candidate and the proctor may make unfair means case in such a case. तो इसमें अगर आप ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा देना चुनते हैं तो आपको ही ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका जो गूगल मीट का कनेक्शन है वो किसी भी समय पूरी परीक्षा के दौरान वो डिस्कनेक्ट ना हो और आप मोबाइल कैमरा से गूगल मीट पर ओझल ना हो।
तो अगर आप किसी वजह से डिस्कनेक्ट होते हैं या ओझल होते हैं तो वो जिम्मेदारी आपकी मानी जाएगी। तो आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करना वो आपकी जिम्मेदारी है। आपका मोबाइल के अंदर चार्जिंग सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई भी एक्सक्यूज़ ये नहीं ले पाएंगे कि मेरा डाटा ख़त्म हो गया या मेरा फ़ोन में चार्जिंग चली गई तो क्या मैं ऑफलाइन हो जाऊं। तो ऑफलाइन होने की इजाज़त इस बार आपको नहीं है। आपको पूरी की पूरी परीक्षा के दौरान कैमरा ऑन रखना होगा और इसके लिए आपके पास पर्याप्त डाटा भी मौजूद होना चाहिए। तो आप अपना रिचार्ज वगैरह पहले से ही करा के रखें और मोबाइल की चार्जिंग भी आपकी ठीक होनी चाहिए, या जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करेंगे उसमें चार्जिंग वगैरह ठीक प्रकार से हो। 5वां पॉइंट ये कहता है द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाइवा एटसेट्रा ऑफ यूजी सेमेस्टर विल बी गॉट कंडक्टेड इंटरनली। तो ये जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हैं, जो प्रैक्टिकल विषयों में होते हैं, वो आपकी परीक्षा से पहले ही इंटरनली आपके प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो है वो आयोजित करेंगे। यही चीज़ जो है वो आगे बताई गई है कि पीजी कोर्सेज में जहाँ पर डिसर्टेशन वगैरह होता है तो वो अपने विभाग से संपर्क करके, अपने कॉलेज से संपर्क करके विद्यार्थी उसको जमा करेंगे। पॉइंट नंबर 6, the chairperson director will make wide publicity among the students that the candidate need to enclose his roll number slip along with the answer sheet as first page and has saved the answer book in PDF format with his roll number as the file name। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी रोल नंबर स्लिप का आपको फ्रंट पेज बनाना है अपने PDF का। तो पहला पेज रोल नंबर स्लिप होगा और इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि आपको जो फाइल PDF सेव करनी है वो डिफ़ॉल्ट नेम से सेव नहीं करनी है जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन आपको देगी, बल्कि आपको उसमें अपना रोल नंबर मेंशन करना है और आप चाहें तो बाद में उसका सब्जेक्ट भी मेंशन कर दें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। बहुत बार क्या होता है कि विद्यार्थी इंग्लिश के पेपर में हिंदी का या हिंदी के पेपर में इंग्लिश का पेपर जो है वो अटैच कर देते हैं, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो आप फाइल में रोल नंबर एंड देन इंग्लिश, हिंदी, पॉल साइंस जो भी है वो आप आगे लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 में द चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल विल प्रिपेयर ए गूगल फॉर्म एंड शेयर द लिंक ऑफ द सेम विद द कैंडिडेट्स फॉर अपलोडिंग ऑफ द आंसर बुक्स। तो आपको आपकी संस्था की तरफ से एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, आपको अपनी आंसर बुक का PDF उसी में ही अपलोड करना है। Point number 8, ex-students of the shifted, affiliated, disaffiliated, closed institute colleges will be required to register themselves in the colleges as allotted to them on their admit card by updating his details, that is name, university, roll number, class, semester, etc. The college will get the information filled from these students either in online mode। तो जो भी विद्यार्थी किसी ऐसी संस्था के हैं जो कि किसी वजह से क्लोज हो गई है या पूर्व विद्यार्थी हैं, तो उनके एडमिट कार्ड पर नए कॉलेज का नाम दिया जाएगा। तो वहाँ पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और 50 रुपये की आपको फीस भी जमा करानी है। वो इन्फॉर्मेशन आपको आपकी रोल नंबर स्लिप पर मिलेगी कि कहाँ आपका सेंटर बना है। पॉइंट नंबर 9, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द करेक्ट क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन सप्लाइड टू हिम बाय द डिपार्टमेंट। पॉइंट नंबर 10 भी इसी से रिलेटेड है। नो कंप्लेंट फॉर अटेम्प्टिंग रॉन्ग क्वेश्चन पेपर बाय द कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड लेटर ऑन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आए वो आपके ही विषय का हो। अगर किसी वजह से गलत क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट कर देते हैं तो बाद में इस बारे में कोई भी कंप्लेंट आपकी मान्य नहीं होगी, उस पर सुनवाई नहीं की जाएगी। तो भी आप मौके पर ही बताएंगे कि आपका पेपर गलत है। पॉइंट नंबर 11, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द पेपर एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो ध्यान दीजिए कि ये चेंज है इस बार। पहले कुछ एग्जाम में 50% या 75% आपको पेपर करना होता था और कहीं से भी आप पेपर कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है और जो इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन पेपर पर हैं उसी हिसाब से, यानी आपका जो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर है उसी हिसाब से होगा और ये फुल क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसमें 100% यानी करना है आपको, और इसके लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर 9:30 बजे पेपर शुरू होता है तो आपको 1:30 बजे तक पेपर करना है और 1:30 बजे अगर शुरू होता है तो 5:30 बजे तक करना है। और यही समय आपका PDF बनाने का है और इसी समय में आपको आप
गूगल फॉर्म पर ही अपलोड करेंगे, आप लेट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12, द कैंडिडेट विल रिसीव द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द रिमोट लोकेशन ऑन A4 साइज पेपर इन हिज हैंड राइटिंग। तो आपको अपनी ही हैंड राइटिंग में क्वेश्चन पेपर करना है A4 साइज के आंसर शीट पर, और टोटल जो इस बार नंबर होगा वो 36 होगा। आप यानी 36 पेजेस में अपना आंसर जो है लिख सकते हैं, रोल नंबर इसके अलावा है। तो यानी टोटल 37 पेज का आपका मैक्सिमम PDF बनेगा आंसर बुक का। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका पेपर 20 पेजेस में हो जाता है तो आपको फालतू पेजेस का PDF बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल 20 का बनाइए इन दैट केस। अगर 36 तक जाता है आपका तो 36 का बनाएंगे आप। तो जितने भी आप पेजेस आप लिखते हैं आपको PDF उतना ही बनाना है, फालतू पेजेस, ब्लैंक पेजेस को आप PDF में इंक्लूड ना करें। और आपको ये सारी जानकारी जो है वो फर्स्ट पेज पर भरनी है। इसमें जो अलग महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स विल अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज। तो आप 1 2 3 4 5 ऊपर से नीचे आएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5वां क्वेश्चन पहले कर दें, फिर तीसरा कर दें, फिर दूसरा कर दें। तो उल्टे क्रम में या किसी अन्य क्रम में आप नहीं करेंगे, सीधे आप 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएंगे। उनके पार्ट्स भी आपको उसी प्रकार से करने हैं। और जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका नंबर आप पेज के सेंटर में लिखेंगे, ना कि हाशिए पर, मार्जिन पर आपने नहीं लिखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि PDF बनाते हुए वो मार्जिन पर जो चीज़ें हैं वो कट जाती हैं, इस वजह से आपको ये बीच में लिखना है। मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह से लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए, इस तरह से आपको जो है वो भरना है। आपको सारी ये जानकारी जो है वो फर्स्ट पेज पर देनी है। आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर शब्दों में, अंकों में, दोनों, और नेम आपका, क्लास, सेमेस्टर, नेम ऑफ द पेपर यानी नोमेनक्लेचर उसका, कोड ऑफ द पेपर जो कोड होगा क्वेश्चन पेपर का, कितने पेजेस आपने लिखे हैं, ये जानकारी आपने बाद में भरनी है। मान लीजिए आप 28 पेज लिख पाए तो 28 लिखेंगे, 20 लिख पाए तो 20, 36 लिख पाए तो 36। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन और आपने सिग्नेचर जो है वो भी इस पर करने हैं। पॉइंट नंबर 13 हमें ये कहता है द कैंडिडेट विल राइट द अबव इंफॉर्मेशन एंड रोल नंबर, पेपर कोड एंड पेज नंबर एट ईच पेज ऑफ द शीट यूज्ड। तो आपको ये जानकारी हर एक पेज पर देनी है, यानी रोल नंबर हर एक पर लिखना और पेपर का कोड यानी क्वेश्चन पेपर का कोड आपको हर एक पर लिखना, और पेज नंबर अगर वो पहले से प्रिंटेड नहीं है तो वो भी आपको डालना है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी आंसर बुक में पहले से ही पेज नंबर प्रिंटेड हो, अगर नहीं होता तो आपको हाथ से लिखने होंगे। तो द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही हैज पुट हिज सिग्नेचर, और इसके अलावा आपको हर एक पेज पर सिग्नेचर करने हैं आपके नीचे की तरफ को। ध्यान दीजिए कि आंसर शीट विदाउट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। तो ब्लैंक अगर आप आप उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, अनसाइंड छोड़ देंगे, तो वो फिर आपकी इवेल्युएशन उसकी नहीं होगी। Point number 14, the candidate will be required to complete all the process and will save the PDF file by using a scanner or mobile app। तो ये आप पहले भी करते रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस या एडोब स्कैन, किसी भी ऐप से आप PDF बनाएंगे और उसको अपने रोल नंबर से सेव करेंगे। अपने डिफ़ॉल्ट नाम जो है वो नहीं देना है उसको। जो मोबाइल एप्लीकेशन अपने नाम से अगर कुछ अपने डिफ़ॉल्ट नेम से सेव करती है तो उसको चेंज करके रीनेम करना है आपको। रोल नंबर यानी यूनिवर्सिटी रोल नंबर, आप उसके बाद उसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड कर दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस प्रकार से आपको जो है वो ये बनाना है, और PDF जो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसमें जो भी आपने लिखा है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो। अगर आपका PDF क्लियर नहीं है तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। एक जो नई चीज इसमें आई है वो ये है कि आपको इसमें पासपोर्ट साइज पॉइंट नंबर 15 में फोटो जो है वो रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपको लगानी है। इवन इफ वो पहले से आपकी प्रिंटेड फोटोग्राफ उसमें है तो भी आप लगा देंगे। द कैंडिडेट विल देन सबमिट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ हिज आंसर बुक थ्रू गूगल फॉर्म टू द कंसर्न डिपार्टमेंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, दैट इज 4 आवर्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो 4 घंटे के अंदर अंदर ही आपने PDF जो है वो सबमिट करना है। आपको PDF के लिए अलग से समय नहीं मिलेगा। तो जैसे 9:30 बजे पेपर शुरू होता है तो 1:30 तक आपका PDF सबमिट हो जाना चाहिए। लिखा हुआ है क्लियरली कि वो गूगल फॉर्म पर सबमिट होना है, और द आंसर शीट रिसीव्ड लेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप अगर लेट सबमिट करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा इस बार। 17,
While sending the answer book, the candidate will write his roll number, nomenclature and code number of the paper in the subject of Google form. तो गूगल फॉर्म के अंदर भी आपको सारी जानकारी भरनी है जो आप अपनी आंसर बुक में भरेंगे, जैसे आपका रोल नंबर, आपका पेपर कोड, उसका टाइटल, नोमेनक्लेचर, तो ये सब चीज़ें जो है आपको मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर 18 ये कहता है कि while attempting the examination through pen and paper, the candidate will make themselves available to sit in front of webcam running through Google Meet for the full duration of the paper in the place at their place of examination. तो 4 के 4 घंटे आपको अपनी गूगल मीट और अपना कैमरा ऑन रखना है। अगर आप किसी भी वजह से ऑफलाइन होते हैं तो वो यूएमसी मानी जाएगी। द पोजीशन ऑफ द वेबकैम हैज टू बी एडजस्टेड इन सच ए वे दैट द फुल व्यू ऑफ द कैंडिडेट अटेम्प्टिंग द पेपर इज विजिबल टू द इन्विजिलेटर। तो जो भी आपके निरीक्षक हैं, जो कि सुपरवाइजर हैं, इन्विजिलेटर हैं, वो आपको ठीक प्रकार से देख पाएं। आपने कैमरे का व्यू इस प्रकार से रखना है, आप उसको उल्टा टेढ़ा नहीं कर सकते हैं। द कैंडिडेट विल पुट हिज माइक्रोफोन इन ऑफ मोड ड्यूरिंग द गूगल मीट एक्सेप्ट द वेबकैम। तो आपको वेबकैम चला करके रखना है लेकिन माइक्रोफोन ऑफ रखना है ताकि आपकी तरफ से कोई शोर वगैरह जो है वो उधर एग्जामिन जो इन्विजिलेटर है उसको सुनाई ना दे और दूसरे कैंडिडेट्स को सुनाई ना दे। द कैंडिडेट विल नॉट राइट हिज मोबाइल नंबर। तो आपको मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करना, आपको वही डिटेल्स देनी है जो कि पॉइंट नंबर 12 में आपसे पूछी गई हैं। पॉइंट नंबर 20 जो लास्ट पॉइंट है, while attempting the paper the candidate will use only blue और black ink only। ब्लैक पेन में आप या ब्लू पेन में ही लिखेंगे। तो कुछ विद्यार्थियों की आदत होती है कि हेडलाइंस वगैरह, हेडिंग्स वगैरह बनाने के लिए वो लोग रेड पेन का यूज कर लेते हैं। सो रेड पेन और ग्रीन पेन, सो दोज आर नॉट अलाउड। यू हैव टू राइट द फुल पेपर इन आइदर इन ब्लैक और इन ब्लू। तो ब्लू जो है वो आपका प्रेफर्ड कलर होना चाहिए, तो ये इसी में ही आपने करना है। आई होप कि आपको ये गाइडलाइंस अब क्लियर हो गई होंगी। 20 पॉइंट्स को आप लोग फिर से पढ़ लेंगे। आपको ऑलरेडी जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आपको मिल चुकी इंस्ट्रक्शंस, और इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो का आपको कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो जरूर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।